economic impact and the policy considerations for our vulnerable urban population. So, especially over the last 3 months, residents of the cities have heard terms like soft lockdown, strict lockdown, and now more recently a smart lockdown. But does Pakistan have the kind of economic reserves seen in developed nations? And does the slowing down of the economy, is this actually causing more of a welfare crisis? And we can see that this is being felt acutely in our city. So I would invite Naveed Iftikhar to weigh in on this, on the economic issue. Naveed, my first question to you is that what have been, in your opinion, the main challenges faced by city residents, and what kind of policies or practices would be helpful for cities to implement in terms of economic relief? Yeah, thank you, Sarah. This is important. और अभी भी आपने देखा होगा जब भी लॉकडाउन की डिस्कशन होती थी, so economic consideration was one of the main points. But I would say that economic consideration के साथ साथ इस वक्त जो है वो इंसानी जाने बचाना जो है, that is very important. And obviously, when we talk about saving lives, then economic activity is also important. तो the challenge is huge. ना सिर्फ मैं तो लोग इसको differentiate करते हैं between developing and developed countries. So this challenge is, universal. Even for US, for Denmark, for every country. So economic जो hit है वो developed countries में -6, -7% तक भी economic growth जो है वो रह रही है कुछ countries में. And हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में वो अभी जो planning commission estimates release किए हैं उसमें earlier we were expecting somewhere between 2 to 3%, जो अभी growth जो है वो -0.4% आ गई है. So that is just one way to look at it. हमारी जो है services और industry जो है वो दोनों के अंदर जो है वो growth rate negative है. Agriculture obviously least hit थी इस pandemic से, तो वहाँ से positive growth थोड़ी generate हुई है. Otherwise this is negative both in services and industry में भी जो है. So what I want to share with you कि ये economic activity का challenge जो है that is universal. It's not unique to developing or a poor country. One. Second जो है वो there is a जो अभी आपने बात की है कि आगे जाके क्या करना चाहिए. Generally क्या होता है? Generally when we talk about growth या government ने economic activity accelerate करनी हो तो we try to give fiscal incentives. So the challenge right now is that the government is constrained in terms of revenues as well. हमारे revenues भी कम हो गए हैं. We were expecting near government तो 5 trillion कह रही थी, but somewhere between around 4.5 trillion आने थे जो less than 4 trillion अब रह गए हैं. तो these sort of constraints are there. So now we need to see innovatively कि हमने economic activity को भी support करना है जिससे growth भी आए, jobs भी create हों. लेकिन इसके साथ साथ we can't dole out money to businesses right now. So we started doling out money to big corporations, so that's still a questionable thing. Some of us said that they should retain employees and then they can get loans, but I doubt that strategy can work. So मेरे ख्याल में जो non fiscal measures हैं वो बड़ी important है. तो non fiscal measures पे काम करना चाहिए. Some of those non fiscal measures that I've been advocating, जैसे मैं कह रहा हूँ कि जो city governments होती हैं उनके पास सबसे बड़ा tool जो है वो land use होता है. How do you reconfigure the land use in your city that can promote economic activity? जैसे हमारे cities के अंदर जो है less than 5%, कई शहरों में less than 2% जो land use है वो commercial activities के लिए है. So cities are for commerce and culture. So we are not using cities for commerce and culture. हम बहुत सारी state land अगर देखें तो अभी भी unoccupied पड़ी हुई है. इस्लामाबाद की आप मिसाल ले लें, आपको blue area के अंदर खाली प्लाट नजर आते हैं. So if you look around, so much land is vacant. So this is the time. How can we generate economic activity with optimal land use, जो सरकारी भी land है, और overall reconfigure our land use. तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा tool जो है वो reconfiguring land use है in our cities. जी. Actually, Naveed, this is a very interesting and important point, especially जब हम एक novel किस्म का crisis face कर रहे हैं, जैसे कि as a pandemic, हम land use को temporarily भी reconfigure कर सकते हैं. And वो हम अगर कर सकते थे, it would have, I think, helped spread out economic activity and reduce the level of crowdedness in certain markets. So economy भी आपकी थोड़ी सी चलती रहती. Daily commerce would not be affected, and
Do you think that that could have worked if we had done temporary reconfiguration? Yes, I think अभी पूरी दुनिया में जो cities हैं, they are responding to this COVID-19 crisis through this temporary readjustments. You can say that this is for this time period during COVID-19. जैसे हम अभी एक RDA के साथ, तारिक साहब के साथ मिलके हम काम कर रहे थे, what we are trying to do कि राजा बाजार के एरिया में, how can we close some streets and roads for cars and we can make that space available to small businesses, vendors, as well as people can maintain safe social distancing, physical distancing during shopping. And लेकिन अभी क्या होता है, जो congested markets होती हैं, वहाँ cars और other जो हमारी auto जो vehicles हैं, they occupy that space. इसी तरह जो सबसे बड़ी example है इसकी reconfigure करने की, वो restaurants हैं. So आपको पता है restaurants जो हैं, वो कई दफ़ा मैं लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं होता कि restaurants job कितनी create करते हैं. तो यहाँ सुपर में एक रेस्टोरेंट है, तो वहाँ अक्सर हम सारे इस्लामाबाद वाले लोग जाते हैं उधर. तो मैंने किसी दिन किसी से पूछा कि आपके ख्याल में कितने एम्प्लॉई होंगे उस रेस्टोरेंट में, से स्मॉल रेस्टोरेंट. तो वो मुझे कहते हैं 10 से 12. तो आई टोल्ड हिम नो, 150 people work for that small restaurant. There are hardly 7 to 8 tables or 10 tables in that restaurant. So 2 shifts में आप इमेजिन करें कितने लोग जॉब्स पे लगे हुए हैं. So the temporary arrangement is, जो अभी COVID-19 की जो रिसर्च आ रही है, उसमें आप इंडोर जब होते हैं तो ज्यादा वल्नरेबल हैं. When you are outdoor, आपने डिस्टेंसिंग मेंटेन की हुई है, you can sit on the table, you can go with your family, और आप उसको मेंटेन करते हुए you can use that business. तो इसी तरह अगर आप यहाँ से गिने तो और भी there are so many such businesses जहाँ पर हमें लैंड यूज, जो हमने पार्किंग को एलोकेट किया हुआ है, वो हमें बिजनेसेस पे एलोकेट करना चाहिए. और हमें जो है वो इसके लिए टेम्परेरी लैंड यूजर्स जो हैं. इसी तरह स्ट्रीट वेंडर्स हैं, बहुत सारे बिजनेसेस, लोगों के बड़े बिजनेसेस बंद हो गए हुए हैं. यू ओपन अप अ स्पेस. ये तारिक साहब व्हेन ही वाज नाजिम कोटा, ही ऑफ्टन टेल्स अस दैट स्टोरी कि इन्होंने एक बड़ा एरिया था, तहसीलदार का घर था, उसको इन्होंने रेडी वालों के लिए इस्तेमाल किया. सो इस तरह के घर शर ढूंढे सरकारी लोगों के और उनके अंदर रेडियां शेडियां लगाएं. सो दिस इज द टाइम टू डू सच थिंग्स, जिसके अंदर जो है वो आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दें टू कम फॉरवर्ड, दे डू बिजनेस एंड दे मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस. तो टेम्परेरी आई थिंक दैट्स एन एक्सीलेंट आइडिया कि आप कुछ टाइम के लिए ये अलाउ करें और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उसको जनरेट करें. बिल्कुल, I really agree with this. Naveed, the other thing that I was wondering is that economic जब policies बनती हैं और फिर जो on ground हमारी city run करती है, उसमें बहुत from the policy to the implementation there is a huge gap. So I was wondering अगर आप एक comment इस पे कर सकते हैं that how can we reduce the gap of economic policy and then actually city में जो implementation है policy की. इसमें मैं 2 बातें आपको बताऊंगा. एक मैं पहले लाइटर नोट पे आपको बताता हूँ, देन आई विल कम टू जो है वो दूसरे उसके ऊपर. एक सोशल वर्कर हैं, आई फॉलो हिज मॉडल, आई एडवोकेट हिज मॉडल. कभी आप लोग ब्राउज कीजिएगा, दैट इज एन एक्सीलेंट मॉडल ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन. चंगा पानी. तो चंगा पानी के जो फाउंडर है नज़ीर अहमद वट्टू, हिज डिसाइपल ऑफ जो है वो डॉक्टर अख्तर हमीद खान साहब के जो है वो शागिर्द रहे. तो वो एक बात कहते होते हैं, मैंने अपने आर्टिकल में भी एक दफ़ा कोट की. वो कहते हैं पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो सोची और लिखी जाती हैं इंग्लिश में, वो कन्वे होती हैं उर्दू में और इम्प्लीमेंट होती हैं पंजाबी, सिंधी और पश्तो में. So it tells you a lot about this gap actually. When we are making policies, people like us sitting in Marriott and Serenas and PCs, so things are very different. And when you convey it to provincial headquarters, then things change. उसके बाद जैसे सारिया कह रही, गुजरांवाला में कब लॉकडाउन होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो ये वो डिसीजंस आते हैं जब हमारे यहाँ बहुत गैप आ जाता है. यू नोटिस्ड के जो लोग जो हैं, एक तो ये दिस इज इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, हमारे अंदर जो कोहेरेंस है वो नहीं है टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट के अंदर. एंड द रीजन इज कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा गैप है. द वे थिंग्स हैपन इन इस्लामाबाद, आप किसी मीटिंग में चला जाएं, द काइंड ऑफ डिस्कशंस हैपन इन इस्लामाबाद विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम रहीम यार खान या सखर या जो है वो गुजरांवाला के किसी पब्लिक सेक्टर में या RDA के दफ्तर में जो डिस्कशंस हो रही होंगी. तो देयर इज अ डिस्कनेक्ट. वन. सेकंड जो है वो ओवर द टाइम हमने सिटीज और लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर नहीं किया और ऑटोनॉमी नहीं दी. उस ऑटोनॉमी ना देने के 2 बड़े ऐसे जो है वो आई थिंक जो रिसर्च से भी निकलते हैं जो इश्यूज हैं, वो दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट ये है कैपेसिटी का. अगर आप देखें तो इस वक्त फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का जो साइज है वो दैट इज ह्यूज एक्चुअली.
फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आप पेंशन्स का बिल देखें, आप सैलरीज का बिल देखें, तो फेडरल गवर्नमेंट जो है उस पॉलिसी मेकिंग है, दे शुडंट गो इनटू दैट सॉर्ट ऑफ अ रोल कि दे शुड हायर सो मेनी पीपल। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के अंदर डिपार्टमेंट चला जाएं तो वहाँ अच्छा, उसके बाद आप सिटी में चले जाएं, आप डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस चले जाएं, आप एसी के पास चले जाएं, उनके पास क्या है? सो दे डोंट हैव कैपेसिटी एक्चुअली, रियली शॉर्टेज ऑफ कैपेसिटी है। जितना एरिया सपोज मैं दैट्स अ डिफरेंट मॉडल के वी शुड गो फॉर अ मेरियल मॉडल, एसी मॉडल, व्हाटएवर, लेकिन जितना जितना एरिया अभी एक एसी मैनेज कर रहा होता है, शायद इतने 5 जो है वो डिफरेंट होने चाहिए, और उनके अंदर क्या स्टाफ और कैपेबिलिटी होनी चाहिए। So our cities are unable to fund capacity actually, to finance capacity that is needed to make informed decisions. चाहे वो लैंड जोनिंग के हैं, चाहे डेटा कलेक्शन के हैं, डेटा मैनेजमेंट के हैं, तो बड़ा इशू जो आता है वो स्टेट की कैपेसिटी नहीं है। लोकल लेवल पे टोटली कोलैप्स्ड है सिस्टम हमारा, एंड वी आर नॉट रियलाइजिंग इट कि वी नीड टू बिल्ड कैपेसिटी एट द लोकल लेवल। सेकंड, जो हमने बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन की हुई है, तो जो लोकल गवर्नमेंट का जो रिलेशनशिप विद लोकल पीपल है वो डिस्कनेक्ट है। वहां पे भी देयर इज अ लैक ऑफ ट्रस्ट। व्हाई? बिकॉज पीपल नो दैट डिसीजंस आर नॉट कमिंग फ्रॉम देम, डिसीजंस आर कमिंग फ्रॉम इस्लामाबाद, लाहौर और कराची और वहां से आ रहे हैं। तो आप हाउसिंग के आप लैंड यूज रेगुलेशंस देखें, अभी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स उस पर ऑक्यूपाई करती हैं। आपने वाटर चार्जेस चेंज करने हो, चीफ मिनिस्टर तक उसके जो है ना वो अप्रूवल जाती हैं। सेक्रेटरी हाउसिंग जो है वो फाइनल अप्रूवल देता है लैंड यूज के ऊपर जो है, अदर देन एलडीए जिसका अपना लॉ है। तो व्हाट हैज हैपेंड ओवर द टाइम, देयर इज अ डिस्क। जब हम कहते हैं ना कि ये जो लोग लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं सुन रहे, तो यू नो देयर इज अ रियल इशू। दैट रियल इशू इज द ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पीपल। तो वो चूंकि एंगेज ही कभी नहीं होते। सेकंड ये है कि हमारे यहाँ जो प्लानिंग है और मैनेजमेंट है वो पार्टिसिपेटरी नहीं है। हम रूटीन के मामलात में जब हम लैंड जोन चेंज कर रहे हैं, जब हम मेट्रो बनाने की कोशिश कर रहे हैं या जंगला बस बनाने की, हाउ मच डू वी एंगेज विद पीपल, हाउ मच डू वी टॉक टू पीपल। तो हमें ये जब क्राइसिस आया तो हमें लोगों से बोलना पड़ रहा है, हमारा लोगों से इंटरेक्शन अब हो रहा है स्टेट मशीनरी का, अदरवाइज इट्स अ वेरी रेयर इंटरेक्शन, आपका बहुत कम इंटरेक्शन होता है। तीसरी चीज इसी से मिली जुली जो चीज है कैपेसिटी की, पूरी दुनिया में जो सिटीज होती हैं उनकी जो लोकल अथॉरिटीज हैं उनके पास म्यूनिसिपल अपनी पुलिस होती है एनफोर्समेंट के लिए। अब हमारे यहाँ जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है दे हैव टू रिलाई विद द सेंट्रल पुलिस, प्रोविंशियल पुलिस। तो आपने फाइन्स करने हैं, पार्किंग करनी है, जुर्माने करने हैं, ट्रैफिक के मामलात हैं। व्हाई डू यू नीड अ पुलिस सिस्टम जो इतना सेंट्रल हो? यू नीड अ लोकल म्यूनिसिपल फोर्स जहाँ से आपको ये कैपेसिटी चाहिए कि लोगों को एंगेज भी करें, लोगों को पुलिसिंग भी करें। सो दीज आर आई थिंक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी डिस्कनेक्ट एंड एम्पावरमेंट ऑफ सिटीज। That's very, again, I agree with you, Naveen, on this. मैं बस एक last point पे, I think you've addressed this somewhat, but my personal interest is in fiscal autonomy in our cities, and I think आप ये इस पे आप hint कर रहे हैं. And earlier in our first round, सारिया ने भी इसी बात पे थोड़ा सा वो touch point किया है that we need the decisions to be taken on in the context that they're being applied. So that all hints towards fiscal autonomy for cities. हम अपने cities को किस तरह economically independent और resilient बना सकते हैं. And Naveed, as an urban economist, what would you like to say on this? Is Pakistan able to achieve fiscal autonomy in the near future for its cities, or what do you think? मुझे तो नहीं लग रहा कि नियर फ्यूचर में ये होने वाला है, क्योंकि हमारे जो जनरली जो पॉलिटिकल एलीट होती है या ब्यूरोक्रेटिक एलीट है, समटाइम्स वहाँ से भी रेजिस्टेंस आती है। एंड पर्टिकुलरली यू नो वी थिंक कि हम पॉलिसी मेकिंग सूबे से बैठ के चलाएं हर चीज़ को। और जो अगर आप फिस्कल ऑटोनॉमी की बात करें तो 18th अमेंडमेंट और 7th NFC के बाद जो आइडिया था वो प्रोविंसेस जो हैं दे विल एम्पावर सिटीज एक्चुअली। सो डेवोल्यूशन का असल पर्पस वो था, लेकिन दैट हैज़ नॉट हैपेंड एक्चुअली। we've seen कि we've regressed over the time, और वो रिग्रेशन जो आई है वो उसके अपनी कॉस्ट है कि हमारे अभी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की कैपेसिटी वीक हो गई हुई है, कोऑर्डिनेशन के इश्यूज भी आते हैं, और जो असल में सिटीज़ की अपनी जो रेवेन्यू जनरेशन की कैपेबिलिटी है जब तक वो नहीं आती है ना, तो सिटीज़ की फिस्कल ऑटोनॉमी क्वेश्चनेबल रहती है। नो, स्टिल दे हैव टू गेट फंडिंग फ्रॉम द वर्टिकल फंडिंग, बट दे नीड टू जनरेट रेवेन्यू। पूरी दुनिया में सिटीज का जो रेवेन्यू जनरेशन होती है वो प्रॉपर्टी टैक्स इज वन ऑफ द मेन जो है, जो यहाँ पर सारे प्रोविंसेस के पास है एक्साइज एंड टैक्सेशन, तो बाद में वो ट्रांसफर करते हैं। लेकिन सिटीज जो हैं
प्रॉपर्टी उनका इंटरेस्ट होता है, जब सिटीज को इंटरेस्ट होता है कि उनके यहाँ प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़े सो दैट दे कैन गेट मोर टैक्सेस, सो दे वर्क विद पीपल टू इंक्रीज वैल्यू ऑफ देयर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर सिटीज का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, तो प्रॉपर्टी टैक्सेस इज द वन थिंग। सेकंड जो है वो लैंड यूज है। So I often give this example that people talk about China's so many other models development ke, लेकिन one model that is very prominent in China, that is their land use. Land जो है वो local उनकी administration के पास थी, they use land to attract investment, to create jobs, तो उनके KPI का हिस्सा था। जब आपके KPI का हिस्सा होगा, आप इनकम टैक्स से भी आप शेयर लेंगे, आप सारी जॉब्स भी क्रिएट करेंगे। राइट नाउ हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है लोकल लेवल पे, कोई उनके KPI का हिस्सा नहीं है कि how many jobs have you created, how many businesses you have. So if they have some incentive doing these things, they'll go for this. So right now जो state machinery होती है, they use them for their own benefit, कि आप जाएं encroachment हटा दें, आप वहाँ सड़क बननी है वहाँ पर जाके पहरा दें। So policies are coming, projects। और second ये important बात ये है कि जब स्कीम सारी आपकी जो है वो सेंट्रली तैयार हो रही हो, तो people are not involved in that। तो उससे हमने वाटर की स्कीम्स में भी देखा हुआ है, हमने बसेस की स्कीम में देखा है, we've seen in so many other development projects where I think ना local autonomy होने से, fiscal autonomy होने से our service delivery is marginalized in cities।